Let's be real, the internship process can feel overwhelming. You have probably been there, just like I was, scrolling through endless articles, typing every variation of how to get an internship at a top B school, and even asking ChatGPT for a perfect resume. It feels like you're lost in a sea of information, right? Everyone's telling you something different, and the pressure is on. But what if there was a better way? What if there was a roadmap, a clear path through all that noise? Well, that's exactly what we are going to talk about today. Hi everyone. So I just came back from my mock GDN interview. We'll talk about it later, but first of all, let's come to the point. Like today in this video, I'm going to tell you about the whole internship process at the top B schools, and it's not that too hectic. Like people get a lot tensed about their internship, uh, which is reasonable. Like we have to secure a good internship so that our profile looks good, right? So I'll take you through the process quickly. So the first point, you give CAT, enter into a B school. Either you're a fresher or you have certain amount of work-ex, right? So after getting into an IIM or a top B school, after 1 month or 2 months, you'll start to prepare your resume, refine your resume pointers and everything, so that companies shortlist your resume and accordingly they can interview you and the whole process begins, right? So first of all, for creating your resume, you will be provided with mentors who will guide you. The college will conduct some preparatory sessions for resume building, and first of all, you have to build your resume one pager. No matter how many pointers you have to keep it one pager and clean, so that an HR or company manager can read it properly and it looks representable, right? Now there are different processes for every company. After building a resume, companies would start coming to the campus, and they'll give out the shortlist according to the criteria they have set, and we never know the criteria. So yeah, you can just expect कि इस company से मेरा shortlist आ सकता है, right? And after your resume gets shortlisted, different companies have different rounds. The first round, basically every other company conducts, is the aptitude round. Examination एक होता है basic सा, or quiz kind of something, and many companies just go with the group discussion process first. Like every company does the group discussion. ठीक है, तो पहला एप्टीट्यूड राउंड हो सकता है, उसके बाद जीडी होगा आपका, उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, एंड देयर यू कैन सेल योर सेल्फ. यू शुड लुक रिप्रेजेंटेबल, योर रेज्यूमे शुड लुक गुड. ठीक है, तो ये प्रोसेस ऐसे ही स्टार्ट होता है, एंड आई विल शेयर माई एक्सपीरियंस. आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ वर्क एक्स, एज यू गाइज नो. मेरा प्रोफाइल मैं बता चुका हूँ पहले भी वीडियोज़ में. तो मैंने अपने पॉइंटर्स ऐसे फ्रेम किए, लाइक ऑल द कोर्सेज विच आई डिड, मैंने वो सब ऐड कर दिया. ऑल द POR विच आई होल्ड, पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो सब कुछ मैंने ऐड किया. एंड वर्क एक्स ऐड किया, अपनी इंटर्नशिप्स ऐड की. देन द प्रिपरेशन कमेटी और प्लेस कॉम हेल्प्स यू टू रिफाइन योर रेज्यूमे, मेक इट वन पेजर. एंड रेज्यूमे की मैं आपको टिप्स दे देता हूँ कुछ. रेज्यूमे बनाने के लिए सारे पॉइंटर्स मेजरली वन लाइनर होने चाहिए, एंड क्वान्टिफाइबल पॉइंट्स लिखना है आपको. यू कैन इवन यूज़ स्टार मेथड फॉर बिल्डिंग योर रेज्यूमे. स्टार मेथड इज़ अ सिचुएशन, टास्क, एक्शन एंड रिजल्ट, राइट. इस हिसाब से तुम अपने पॉइंटर्स फ्रेम कर सकते हो, विच लुक्स क्वाइट गुड एंड रिप्रेजेंटेबल. आपको क्वान्टिफाई करना है, स्टार मेथड यूज़ करना है, एंड जो सबसे रिसेंट इवेंट हुआ है उसको सबसे पहले रखना है. एंड 60-70% ऑफ योर रेज्यूमे फ्रॉम द स्टार्ट शुड लुक वेरी रिप्रेजेंटेबल, क्योंकि एंड तक आते आते यू नो लोग पूरा रेज्यूमे पढ़ते नहीं, पहले ही जज कर लेते हैं, राइट. तो वहाँ पे तुम्हें ऐसे पॉइंटर्स डालने जो कि बहुत ही एक्साइटिंग हो सामने वाले के लिए भी, एंड उसमें से अच्छे क्वेश्चंस वो लोग पूछ सके. ये मेथड हो गया रेज्यूमे बनाने का, राइट. उसके बाद दिस इज़ द फर्स्ट थिंग विच यू डू आफ्टर गेटिंग इनटू अ बी स्कूल फॉर इंटर्नशिप. उसके बाद GD के लिए आपको प्रिपेयर करना है. कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी होनी चाहिए, एक टीम में बैठे हो तो कब इंटरप्ट करना है, कब नहीं करना है. ठीक है, ये सब चीज़ें होती है. एंड कंपनीज़ के GDs में पीपल आर वेरी कॉम्पिटिटिव, तो वहाँ पे आपको बहुत सी चीज़ें ध्यान में रखनी होती है, राइट. एंड यू शुड बी लाउड इनफ सो दैट एवरीवन कैन हियर यू. योर पॉइंट्स शुड बी रेलेवेंट. ठीक है, एंड यू शुड बी अवेयर ऑफ ऑल द फैक्ट्स एंड जनरल नॉलेज विच इज़ करंटली गोइंग ऑन इन द कंट्री. ये सब आपको पता होना चाहिए.
So if I share my experience, I cannot reveal my stipend and any sort of basic details for my internship, but I can I was working as an intern in Havels. वो तो I've already mentioned in my LinkedIn profile. So Havels में I placed and I gave 2 rounds. First is GD and the other one is personal interview. You should look confident in your personal interview. That's what they are checking, क्योंकि उनको पता है MBA में अभी तुम आए हो, तुमने इतना कुछ पढ़ाई नहीं किया है, बट वो अपने तुम्हारे पास्ट एक्सपीरियंसेस से क्वेश्चंस पूछेंगे या फिर तुम्हारा कॉन्फिडेंस मेजरली चेक करेंगे. दैट्स इट. इंटर्नशिप का यही प्रोसेस होता है. एंड इफ़ आई टॉक अबाउट फ्रेशर्स एंड वर्क एक्स पीपल, फ्रेशर्स को ज़्यादा टेंशन होती है कि उनका फाइनेंस में या फिर किसी रोल में उनको मिल जाए, बट यू शुड नॉट बी चूजी वाइल अप्लाइंग फॉर द इंटर्नशिप. कई लोग ये माइंडसेट लेके आते हैं कि मुझे तो फाइनेंस में ही जाना है आगे, या फिर मार्केटिंग में ही जाना है, या कंसल्टिंग में ही जाना है, बट अभी काफ़ी कुछ देखना बाकी होता है क्योंकि पूरी MBA बाकी होती है काइंड ऑफ. तो वो फिगर आउट करने में टाइम लगेगा. बट इन इंटर्नशिप यू शुड नॉट बी चूजी अबाउट द ब्रांड, मनी. मतलब ब्रांड और रोल में से आप कुछ ट्रेड ऑफ कर सकते हो, बट मनी शुड नॉट बी ए फैक्टर ऑफ इवेल्युएटिंग अ कंपनी फॉर इंटर्नशिप. ठीक है, क्योंकि आपका काम अच्छा होना चाहिए, रोल अच्छा होना चाहिए, या फिर ब्रांड बहुत अच्छा होना चाहिए. दैट्स व्हाट मैटर्स. उसके बाद आप स्विच कर सकते हो प्रोफाइल में इफ़ यू विल वर्क हार्ड इनफ. एंड वर्क एक्स वालों का ये होता है कि उनका पूरा प्रोफाइल ऑपरेशन या मार्केटिंग में है, बट उनको जाना कंसल्टिंग में या फिर प्रॉडमैन में, तो उनके लिए ये भी डिफ़िकल्ट हो जाता है कि कैसे जस्टिफाई करेंगे पोजीशन जो हम स्विच कर रहे हैं. सो उसके लिए यू हैव टू सीमलेसली मेक योर पॉइंटर्स इन अ वे कि आप वो ट्रांसफॉर्म कर पाओ, दिखा पाओ. आपको अलग अलग डोमेन के लिए अलग अलग रेज्यूमे बनाने पड़ सकते हैं. ठीक है, पॉइंटर्स उस हिसाब से फ्रेम करने पड़ सकते हैं आपको, राइट. सो दिस विल हेल्प यू अ लॉट टू टारगेट अ स्पेसिफिक डोमेन फॉर योर इंटर्नशिप, राइट. तो दीज आर दी ओनली 2 काइंड ऑफ पीपल अप्लाइंग फॉर इंटर्नशिप्स. और कंपनीज मेजरली फ्रेशर्स को मार्केटिंग के रोल्स के लिए देखता है बिकॉज दे आर विलिंग टू डू दैट. जिनके पास ऑलरेडी वर्क एक्स होता है उनका पहले से प्री डिफाइंड माइंडसेट होता है कि कहाँ जाना है, क्या करना है. बट इंटर्नशिप सिर्फ सीखने के लिए होता है. काफ़ी कुछ सीखोगे आप लोग इंटर्नशिप में. एंड अच्छी कंपनीज में अप्लाई करना. एंड आई होप यू गाइज ऑल द वेरी बेस्ट फॉर इंटर्नशिप. एंड दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग. थैंक यू. Reminiscing of good